Hello students, I am Preeti Gupta from MB International School, Nayagaon, Kota. Today I am going to start SST chapter 1, the globe and imaginary lines. So let's start. Chapter 1, the globe and imaginary lines. In this chapter we read about globe in detail. Concept mapping study the earth, shape of the earth, continent and oceans. Globe, what is a globe? Problem with using globes. Parallels latitude, features of parallels of latitude, important parallels of latitude. Fourth point is meridians of longitude, features of meridians of longitude, and last concept is locating places. What is agreed? Studying the earth, shape of the earth, for a long time people believed that the earth was flat in shape. बहुत सालों पहले लोगों का मानना था कि अर्थ की जो सरफेस है वो फ्लैट है. They feared that if they travel really far in one direction, they would fall over its edges. यदि वह बहुत दूर तक ट्रेवल करेंगे तो किनारों पर जाकर गिर जाएंगे, ऐसा उन्हें डर था. Now we know that the earth is not flat. लेकिन अब हम कह सकते हैं, हम जानते हैं कि अर्थ फ्लैट नहीं है. Pictures taken from space show the earth shaped like a sphere because of its spherical shape. यदि हम अर्थ का पिक्चर स्पेस से लेते हैं तो ये हमें स्फीयर शेप में नजर आती है, बिकॉज इट्स स्फेरिकल शेप, क्योंकि इसका जो शेप है स्फेरिकल है. वी कैन नॉट सी द एंटायर अर्थ इवन फ्रॉम स्पेस. हम स्पेस से भी पूरी पृथ्वी को एक साथ नहीं देख सकते. पिक्चर्स टेकन फ्रॉम स्पेस शो ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट ए टाइम. यदि हम स्पेस से भी अर्थ के पिक्चर को क्लिक करते हैं तो भी हमें अर्थ का केवल हाफ पार्ट ही शो होता है. Now we read about continents and ocean. If you take a closer look at pictures of the earth, you will observe large land masses surrounded by water. These land masses are called continents. There are 7 continents on our planet. They are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia. As you know, all our world have 5 continents. Name are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia. Asia is the largest continent while Australia is the smallest continent. जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा. Each continent is divided into countries. Our country, India, is the 7th largest country in the world. It is located in Asia. जो कॉन्टिनेंट्स है वह कंट्रीज में डिवाइडेड होते हैं और हमारी कंट्री एशिया कॉन्टिनेंट में आती है और यह वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है. द लार्ज वाटर बॉडीज सराउंडिंग द कॉन्टिनेंट्स are called oceans. There are 5 major oceans in the world: Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean, and Arctic Ocean. The Pacific Ocean is the largest and the deepest ocean, while the Arctic Ocean is the smallest ocean. As you know, total 5 ocean in the world. First is Pacific, second is Atlantic, third is Indian Ocean, fourth is Southern Ocean, and fifth is Arctic Ocean. और वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट ओशियन इज द पैसिफिक ओशियन एंड स्मॉलेस्ट ओशियन इज आर्कटिक ओशियन. Beside oceans, the earth has many smaller water bodies such as seas, gulfs, rivers, bays, etc. ओशियंस के अलावा भी पृथ्वी पर बहुत सारी वाटर बॉडीज है, जैसे कि रिवर, गल्फ्स, बेस, etc. The earth also have a variety of landforms such as mountain, plains and plateaus. Water bodies के अलावा अर्थ पर landforms हैं such as mountain, plains and plateaus. In order to see the distribution of continents and ocean on the earth, we take help of globes and maps. We will study about maps in the next chapter.
और अर्थ को बहुत ज्यादा डिटेल में समझने के लिए हमें ग्लोब और मैप की हेल्प की आवश्यकता होगी. इन दिस चैप्टर वी रीड अबाउट ग्लोब एंड नेक्स्ट चैप्टर वी विल रीड अबाउट मैप्स. So student, let's start. We read about globe. A globe is a 3-dimension miniature. The earth, एक globe, अर्थ का एक 3D मॉडल है. It shows both distribution and location of land and water on the earth's surface. और उस ग्लोब की सहायता से हम देखते हैं कि पृथ्वी पर वाटर बॉडीज का और लैंड फॉर्म्स का डिवाइड कैसे किया गया है. द ग्लोब रिप्रेजेंट द अर्थ इन अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे. और ग्लोब में अर्थ को बहुत सिंपल और एक्यूरेट वे में रिप्रेजेंट किया गया है, समझाया गया है. लाइक द अर्थ वी कैन सी ओनली 1/2 ऑफ ग्लोब एट ए टाइम. जैसा कि हम स्पेस से अगर अर्थ को देखते हैं तो केवल एक हाफ पार्ट को ही देख सकते हैं, उसी तरह से ग्लोब से भी हम अर्थ को एक टाइम में केवल हाफ पार्ट ही देख सकते हैं. ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड. ग्लोब फिक्स्ड नहीं होता. इट कैन बी रोटेड और टर्न. ग्लोब को भी रोटेट और टर्न किया जा सकता है. जस्ट लाइक द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस. जिस तरह से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है उसी तरह से ग्लोब भी अपने पॉइंट पर रोटेट होता है. द एक्सिस ऑफ द ग्लोब हैज 2 एंड पॉइंट्स. ग्लोब के 2 एंड पॉइंट्स होता है. दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड पोल्स. और इन पॉइंट्स को पोल्स कहा जाता है. द पॉइंट एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल. ग्लोब का जो टॉप पॉइंट होता है उसे नॉर्थ पोल कहा जाता है, व्हाइल द पॉइंट एट द बॉटम इज कॉल्ड साउथ पोल. और जो पोल बॉटम में होता है उसे साउथ पोल कहा जाता है. नाउ वी कैन सी मॉडल ऑफ ग्लोब. डियर स्टूडेंट, दिस इज ग्लोब. This is top pole. It is called north pole, and it is in bottom point. It is called south pole. It is globe. Blue color represent water bodies, and different colors represent different countries. So understood what is the globe? What is the 2 end point and bottom point? What is the mean of blue color? What is the mean of different color? So guys, we read about further detail of globe. Problems with using globes. अब globes को use करने में कौन सी problems हम face करते हैं? Although globes give us accurate location and shape of the continent, ocean, etc. they have certain limitation. माना कि ग्लोब से हमें पृथ्वी के लैंडफॉर्म्स के, ओशियन, कॉन्टिनेंट सबके बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन सबकी सर्टेन लिमिटेशन होती है, कुछ सीमाएं होती है. फर्स्ट लिमिटेशन इज दे डू नॉट अलाउ अस टू सी द एंटायर अर्थ एट अ सिंगल ग्लेंस. सबसे पहला इसका जो प्रॉब्लम है कि हम पृथ्वी को एक ही ग्लेंस में नहीं देख सकते. यदि हमें पूरी पृथ्वी को देखना है तो हमें ग्लोब को रोटेट करना पड़ेगा, तो ही हम उसे एक साथ पूरा देख सकते हैं. सेकंड पॉइंट इज दे डू नॉट शो प्लेसेस एंड लैंडफॉर्म्स इन ग्रेट डिटेल. ग्लोब में हम किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को, पर्टिकुलर सिटी को डिटेल में नहीं जान सकते. दे आर डिफिकल्ट टू कैरी अराउंड. और ग्लोब को कैरी करना भी डिफिकल्ट है. Now we read about parallels of latitude. On looking at the globe carefully, do you see a set of circular lines running across it? These are called parallels of lines of latitude. Now we read about imaginary line. First is parallels of latitude. On looking at the globe carefully, यदि हम globe को carefully देखते हैं, Do you see a set of circular lines running across it? तो कुछ circular lines दिखाई देती है. These are called parallels of lines of latitude. और इन lines को lines of latitude कहा जाता है. These are imaginary lines that run from east to west. और यह lines east से west तक जाती है. The latitude that divides the earth into 2 equal halves is called the equator. और यह अर्थ को 2 इक्वल हाउस में डिवाइड करती है,
और उन इक्वल हाउस को इक्वेटर कहा जाता है. इट इज द लॉन्गेस्ट पैरेलल और या लॉन्गेस्ट पैरेलल भी है. द पार्ट ऑफ द अर्थ विच लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ग्लोब के जो नॉर्थ में इक्वेटर है उसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है. एंड द वन लाइंग ऑन द साउथ इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर. और जो साउथ साइड में पड़ता है उसे सदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है. सिंस दीज आर इमेजिनरी लाइन्स वी कैन ड्रॉ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एनीवेयर बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इन other hemisphere. So if we draw parallels of latitude at 0 degree intervals, there will be 180 lines of latitude. You can see in this picture, it is called parallels of latitude. It is divided into two parts. It is north hemisphere or it is southern hemisphere, and central point is called equator. Now we read about features of parallels of latitude. The parallels of latitude are complete circle. जो parallels lines of latitude है वह complete circle बनाती है except the north and the south poles. केवल north और south pole को छोड़कर, which are points, जो कि points पर है. The length of the parallels decrease as you move away from equator towards the poles. जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ आते हैं वैसे वैसे ये पैरेलल लाइंस डिक्रीज होती है. पैरेलल्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस. पैरेलल्स सारे पैरेलल्स एक इक्वल डिस्टेंस पर लोकेटेड होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से. दे डू नॉट टच और कट वन अनदर. वह एक दूसरे को ना तो टच करते हैं और ना ही कट करते हैं. इक्वेटर इज मार्क्ड एज 0 लैटिट्यूड. इन दिस पिक्चर वी कैन सी इट इज इक्वेटर और यह 0 डिग्री पर मार्क्ड है. लेटिट्यूड टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर मार्क्ड एज एन एंड द वंस टू द साउथ आर मार्क्ड एज एस. इक्वेटर नॉर्थ साइड के इक्वेटर को एन से इंडिकेट किया जाता है और साउथ साइड के इक्वेटर को एस से इंडिकेट किया जाता है. द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल आर मार्क्ड एज 90 डिग्री एन एंड 90 डिग्री एस रेस्पेक्टिवली. और जो साउथ पोल है उसको 90 डिग्री एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो नॉर्थ पर है उसे 90 डिग्री एन से रिप्रेजेंट किया जाता है. सम इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. वैसे तो बहुत सारे पैरेलल्स होते हैं लेकिन कुछ पैरेलल्स इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्स्ट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, सेकेंड इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, थर्ड इज आर्कटिक सर्कल, फोर्थ इज अंटार्कटिक सर्कल. We read about meridians of longitude. अब हम meridians of longitude के बारे में पढ़ेंगे. Did you also observe some lines running from north to south on the globe? These imaginary lines are called meridians or line of longitude. इन लाइन्स को मेरिडियंस या लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड कहा जाता है. मेरिडियंस कैन बी ड्रॉन एनीवेयर बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट. इन लाइन्स को ईस्ट और वेस्ट कहीं भी 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में ड्रॉ किया जाता है. ऑफ द प्राइम मेरिडियन और इन्हें प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है. सो इफ दे आर ड्रॉन एट 1 डिग्री इंटरवल्स देयर विल बी 360 मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. इस तरह से यह 360 मेरिडियंस होंगी और इन्हें मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं. फीचर्स ऑफ मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. नाउ वी रीड अबाउट फीचर्स ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड. द मेरिडियंस आर ऑल ऑफ द सेम लेंथ. जितनी भी मेरिडियंस होती है उनकी लेंथ सेम होती है. सेकेंड पॉइंट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर. टू मेरिडियंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वह इक्वेटर के मैक्सिमम होती है. थर्ड पॉइंट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू मेरिडियंस डिक्रीजेज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल. इट मीन्स जो टू मेरिडियंस के बीच की जो दूरी है वह डिक्रीज होती है जैसे ही यह इक्वेटर से पोल्स की ओर जाती है. फोर्थ पॉइंट इज द मेरिडियंस कट द पैरेलल्स एट राइट एंगल्स, फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री. जो मेरिडियंस होती है वह पैरेलल्स को राइट एंगल से कट करती है. फॉर एग्जाम्पल 90 डिग्री
फिफ्थ पॉइंट इज मेरिडियंस हेल्प टू मेजर डिस्टेंस इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। मेरिडियंस हमें दो डायरेक्शन ईस्ट और वेस्ट की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए हेल्प करती है। सिक्स्थ पॉइंट इज द प्राइम मेरिडियन इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। इट डिवाइडेड द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर। जो प्राइम मेरिडियन है वह पृथ्वी को दो लॉन्गिट्यूड में डिवाइड करती है। फर्स्ट इज द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न। The meridian to the east of the prime meridian are marked as E, while the meridian to the west of it are marked as W. जो ईस्ट साइड की मेरिडियन है उसे E से मार्क्ड किया जाता है और जो वेस्ट साइड की मेरिडियन है उसे W से मार्क किया जाता है। लास्ट पॉइंट इज द 180 डिग्री ईस्ट एंड द 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस लाई ऑन द सेम लाइन। यह दोनों सेम लाइन पे पड़ती है, हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। इट मीन्स यह पूरे वर्ल्ड को दो पार्ट में डिवाइड करती है। लोकेटिंग प्लेसेस द पैरेलल्स एंड द मेरिडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। पैरेलल्स और मेरिडियन एक दूसरे को एक फिक्स्ड प्लेस पर टच करती है टू फॉर्म ए नेटवर्क ऑफ लाइंस, और लाइंस का एक नेटवर्क फॉर्म करती है। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड ग्रिड, और इसी नेटवर्क को ग्रिड कहा जाता है। यू कैन सी ऑन दिस पिक्चर this rectangular box is called grid. The grid help us to locate place on the globe, और यह ग्रिड ही हमें किसी स्थान को सर्च करने में हेल्प करते हैं। In order to locate a place, you need to know the value of both its latitude and longitude. यदि हमें किसी प्लेस को सर्च करना है, किसी प्लेस के बारे में जानना है, तो सबसे पहले हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। द पॉइंट एट विच द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अक्रॉस ईच अदर एट द लोकेशन ऑफ द प्लेस, और जिस भी प्लेस को हम सर्च करना चाहते हैं उस प्लेस पर यह एक दूसरे को क्रॉस करती है। फॉर एग्जाम्पल द लैटिट्यूड ऑफ चेन्नई इज 13 डिग्री नॉर्थ, इट्स लॉन्गिट्यूड इज 80 डिग्री ईस्ट। यदि हम चेन्नई के बारे में देखेंगे तो यह 13 डिग्री नॉर्थ पर होगा और इसकी जो लॉन्गिट्यूड होगी वो 80 डिग्री ईस्ट पर होगी। द पॉइंट वेयर द लाइंस पासिंग थ्रू 13 डिग्री नॉर्थ एंड द 80 डिग्री ईस्ट मीट ईच अदर गिव्स अस द लोकेशन ऑफ चेन्नई, और जहां ये दोनों लाइंस आपस में क्रॉस करती है वही पॉइंट या लोकेशन चेन्नई का होगा। देयरफॉर द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड हेल्प अस इन फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, और इसीलिए लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से हम किसी भी प्लेस को सर्च कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।